कैसे हो बच्चों आप लोग? I hope you are so nice. And today environment also very nice. So students, today is 31st October, and today's thought is something is better than nothing. कुछ तो है हमारे पास, नहीं होने से अच्छा है, कुछ तो है. So students, welcome into online education. महानगर पालिका मुंबई, बृहन मुंबई महानगर पालिका में आप सभी का स्वागत है. तो बच्चों, बिफोर स्टार्ट द लेसन आई वांट टू शेयर सम सॉन्ग. बच्चों, आपको भी वो दोहराना है, हमको फ्रेश होना है, इसलिए लिसन केयरफुली एंड रिपीट आफ्टर मी. ओके, डू यू लाइक सॉन्ग? You can unmute your mic. Student, you can unmute. Do you like song? Yes, sir. Okay. Let's start now. Repeat after me, okay? Blue sky, I can see the sky. Blue sky, blue sky. God gave me eyes so I can see the sky. Blue sky, I can see the sky. God gave me eyes so I can see the sky. नेक्स्ट देखिए बच्चों, म्यूट कर लीजिए. डिंग डोंग, I can hear the bell. Ding dong, I can hear the bell. God give me ear so I can hear the bell. Ding dong, I can hear the bell. God give me ear so I can hear the bell. Next, red rose, I can smell the rose. Red rose, I can smell the rose. God gave me nose so I can smell the rose. Yum, yum, I can taste ice cream. Yum, I can taste ice cream. God give me tongue so I can taste ice cream. Wow, my skin so soft. Wow, my skin so soft. God gave me skin so I feel skin so soft. So students, I think this is song. Thank you for the God. He gave us so many senses in our body. So students, good morning. Now I think you are so fresh. Now start the lesson, today's lesson. So students, before start the lesson, I would like to share some pictures. Look at them and answer. Okay? Now watch. So students, look at the picture carefully. Welcome.
Look at the picture No, but girl. and tell when do we use it. Here, look at here. Something is right. यहाँ कुछ लिखा हुआ है, आपको पढ़ना है और बताना है इसका उपयोग हम कब करते हैं. Look at the picture and tell when do we use it. हम इसका यूज कब करते हैं आपको बताना है बच्चों. कब करते हैं हम? गुड लक फॉर योर एग्जाम एंड डू द बेस्ट. कब करते हैं इसका उपयोग हम बच्चों? When do we use it? सर जब एग्जाम आता है तब. Very good. At the exam time. Very good. Next. Happy Teachers Day. Happy Teachers Day. Yes. टीचर्स डे को करते हैं. Yes. On the टीचर डे आता है तब हम लोग टीचर डे करते हैं. वो नहीं खाओ दे. Yes. Can you tell me date Teachers Day? When? बच्चों कब आता है टीचर्स डे पता है? हैप्पी टीचर डे बोलते हो आप, लेकिन कब आता है? इन विच मंथ? वीडियो नहीं देख रही. कौन से महीने में आता है टीचर्स डे? एनीबॉडी? Happy Teachers Day. Very good. Very good. हैप्पी टीचर्स डे बोलते हैं हम, रोज देते हैं. And now, हम टीचर को हैप्पी टीचर डे का कार्ड देते हैं. yes, what is this? सितंबर को आता है टीचर्स डे. हैप्पी बर्थडे जब किसी का जन्मदिन हो तब बोलते हैं. Yes, very nice. जब somebody have their birthday at that time, हम क्या कहते हैं? हैप्पी बर्थडे. हैप्पी बर्थडे टू यू एंड सेलिब्रेट करते हैं. वेरी गुड, वेरी नाइस. Oh, congratulations. In which moment do we use congratulations? जब किसी की शादी होती है तब देते हैं. Very good. Marriage. Another? और? कोई किसी भी चीज में जीतता है तब. Very good. At the when somebody won the match at the event, तब हम congratulations इस वर्ड का यूज करते हैं. वेरी नाइस. तो मतलब समथिंग स्पेशल होता है. एट दैट टाइम समथिंग स्पेशल वाज देयर, सो वी कैन यूज सम ग्रीटिंग्स. सो स्टूडेंट्स, ओपन योर टेक्स्ट बुक, माय इंग्लिश बुक 4, पेज नंबर 40. स्पेशल, समथिंग स्पेशल. टुडे's topic is something special. Okay, listen, read, do it yourself. Okay, listen, read and do it yourself. सुनो, पढ़ो और तुम स्वयं करो. Student, mute your mic. So today topic is something special. Something special मतलब कुछ तो स्पेशल है आज. क्या है? What does every classroom have? बच्चों, क्लास में, हर क्लासरूम में क्या क्या होता है यह बताया गया है. जनरली क्या क्या होता है देखते हैं हम. What does every classroom have? A board, a table, a chair, one or two cupboards, desks and benches, or mats, charts, posters, calendars, and so on. जनरली हर क्लासरूम में ये सब चीजें होती हैं. बोर्ड होता है, फलक होता है, टेबल होते हैं, चेयर होते हैं,
1 or 2 कपबोर्ड्स होते हैं और ये क्या टीचिंग एड्स रखने के लिए हो जाते हैं, या तो फिर आपके जो लर्निंग मटेरियल्स होते हैं बच्चों के, उसके लिए कपबोर्ड्स का यूज किया जाता है। ये सब आपको क्लास में मिलेगा। डेस्क होते हैं बैठने के लिए, बेंचेस होते हैं, बेंचेस जहाँ नहीं होते वहाँ मैट्स होते हैं, चटाइयाँ होती हैं। सम टीचिंग एड्स में चार्ट्स होते हैं, सम पोस्टर्स होते हैं, ठीक है, चित्रालेख होते हैं, कुछ चित्र, इस प्रकार से कैलेंडर्स भी होते हैं। इस प्रकार से अनेक वस्तुएं आपके क्लासरूम में जनरली देखने मिलती हैं। वी हैव समथिंग स्पेशल इन आवर क्लासरूम, बट इन आवर क्लासरूम समथिंग स्पेशल मतलब कुछ नया, कुछ तो अलग अपने भी क्लासरूम में होता है। अब वो क्या होता है देखेंगे हम। तो सबसे पहले जनरली हमारे क्लासरूम में हम ये सब चीजें देखते हैं। वो क्या है? a board, a table, a chair, 1 or 2 cupboards, desks and benches or mats, charts, posters, calendars, and so on. But we have something special in our classroom. What is that? वो क्या है? वो है, it is a post box, पत्र लेटर, जहां हम पत्र डालते हैं, ठीक है। ये जनरली आप डाक का यूज करते हो, डाकिया आता है उस समय आपके हाथ में एक लेटर देके जाता है, ठीक है। इट इज अ पोस्ट बॉक्स जस्ट फॉर अस, हमारे लिए एक पोस्ट बॉक्स है। वी राइट मैसेजेस, कार्ड्स एंड लेटर्स टू आवर फ्रेंड्स इन द क्लास। पोस्ट बॉक्स का हम यूज किस लिए करेंगे? उसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने मैसेजेस राइट कर सकते हैं, उनको लिख सकते हैं। मैसेज लेटर जो है हम पोस्ट बॉक्स में डालेंगे अपने फ्रेंड्स को या फिर अपने क्लास टीचर को। टू आवर फ्रेंड्स इन द क्लास, देन वी पुट देम इन द पोस्ट बॉक्स। हमको लेटर टाइप करना है अपने फ्रेंड्स के लिए, या फिर हमें क्या करना है, टीचर्स के लिए हम लेटर टाइप करते हैं इन स्पेशल ओकेजन, देयर बर्थडे और टीचर डे, ठीक है, चिल्ड्रंस डे। हम बच्चों को भी चिल्ड्रंस डे या फिर अभी अब इंडिपेंडेंस डे आता है, तब भी आप लेटर्स टाइप कर सकते हो और फिर उसको पोस्ट बॉक्स में डाल देना है क्लास में। एवरी डे आवर टीचर ओपन द पोस्ट बॉक्स, हर दिन हमारे टीचर उस पोस्ट बॉक्स को ओपन करेंगे। सी लुक्स एट द नेम्स ऑन द लेटर्स एंड कार्ड्स, जो भी हम कार्ड्स डाल रहे हैं, ठीक है, जो भी हम कार्ड्स या लेटर्स डाल रहे हैं उसको टीचर ओपन करेंगे और उसको, उस पर नाम लिखा होगा हमारा। जो भी स्टूडेंट्स अपना लेटर डालेंगे उस पर अपना नाम लिखेंगे और किसके लिए है उसका भी नाम लिखेंगे। एंड हैंड्स देम आउट, वो पोस्ट बॉक्स को टीचर क्या करेंगे, हमारे टीचर ओपन करेंगे, बाहर निकालेंगे। वी आर प्लानिंग अ सरप्राइज, वी आर प्लानिंग अ सरप्राइज मतलब हम टीचर के लिए एक सरप्राइज बनाएंगे उसको, ठीक है। वी आर प्लान, हम योजना पूर्वक रूप से, मतलब सरप्राइज, अचानक, आश्चर्यजनक कुछ तो, समथिंग स्पेशल वाज देयर, कुछ तो स्पेशल रहेगा टीचर्स के लिए हमारे। तो क्या करेंगे, सी विल गेट इन, सी विल गेट इट ऑन द 5th of September, टीचर्स डे। ओह, 5th of सितंबर के 5 तारीख को क्या होता है बच्चों, टीचर्स डे होता है। ऑन दैट ओकेजन हम बच्चे क्या करते हैं, दे राइट मैसेजेस, कार्ड्स एंड लेटर्स एंड पोस्ट इन पोस्ट बॉक्स में पुट कर देते हैं, रख देते हैं। और जब एट दैट टाइम इन 5th of September, जब टीचर डे होता है, तब टीचर ओपन करते हैं वो पोस्ट बॉक्स, तब उनके लिए वो सरप्राइज होता है, आश्चर्यजनक बात, क्योंकि एकदम एक्साइटिंग मोमेंट होता है बच्चों, ठीक है। तो सम
ग्रीटिंग्स का यूज करते हैं जब समथिंग स्पेशल होता है, तब हम क्या करते हैं, कुछ स्पेशल मोमेंट्स पर, स्पेशल ओकेजन पर हम सम ग्रीटिंग्स आर यूजेस देयर, मतलब कुछ ग्रीटिंग्स होते हैं जिसका हम जनरली उपयोग करते हैं। अब वो क्या है हम देखते हैं। जैसे एस्टरडे वाज ईद, ईद मिलाद, कल ईद थी, आप सभी को पता है। तो हम एट दैट मोमेंट, एट दैट ओकेजन, हम जब भी किसी से मिलते हैं या फिर हम पोस्ट बॉक्स में लेटर टाइप करते हैं या फिर मोबाइल से या फोन से हम मैसेज सेंड करते हैं, उस समय हम कहते हैं ईद मुबारक, हैप्पी ईद, ईद मुबारक, इस प्रकार का हम ग्रीटिंग्स यूज करते हैं। इसके अलावा एट दैट टाइम एंड एट द month of December, at the Christmas, सांता क्लॉज, हम इस प्रकार से जब वो समय आता है मैरी क्रिसमस का टाइम होता है दिसंबर में, आफ्टर 20 दिसंबर, 20 के बाद ही आता है जनरली, 24 या 25 समथिंग। तो उस समय हम क्या करते हैं, मेरी क्रिसमस करके हम क्या करते हैं, ग्रीटिंग्स यूज करते हैं, सबको बधाई देते हैं। एट द मोमेंट ऑफ इन आवर क्लासरूम, अगर कोई बच्चा फर्स्ट आ जाए या फिर कुछ स्पर्धाएं होती है, कंपटीशन होता है, एंड somebody won the competition, somebody won the game, फुटबॉल गेम, क्रिकेट गेम, डिबेट कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन, ड्राइविंग कंपटीशन, इसमें जब कोई बच्चा जीत जाता है या फिर ऐसे खुशी के मौके पर भी बोलते हैं हम, इसके जब भी आपने बताया, जैसे किसी की मैरिज हो गई, मैरिज एनिवर्सरी है, मैरिज हो रही है, मैरिज हो चुकी है, उस समय हम कहते हैं कांग्रेचुलेशन, अभिनंदन, कांग्रेचुलेशन, अभिनंदन। और नाउ द डे ऑफ दिवाली, इट विल सून कमिंग, बहुत जल्दी आने वाली है। आपने साफ सफाई भी कर लिए होंगे, न्यू क्लॉथ्स, यू परचेस न्यू क्लॉथ्स, और यू आल्सो कलर योर होम, अपने घर को रंग बिरंगे बनाते हो, पटाखे खरीदते हो। एट दैट ओकेजन वी यूज हैप्पी दिवाली, इन होली, हैप्पी होली, कांग्रेट्स, आल्सो काइंड ऑफ कांग्रेचुलेशंस। जैसे हम कांग्रेचुलेशंस का उपयोग करते हैं बच्चों, वैसे ही हम इस शब्द का भी यूज करते हैं, कांग्रेट्स। ओके, यू अंडरस्टैंड? नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स इन योर क्लासरूम। स्टार्टिंग में ही हमने बताया है आपको, एट द स्टार्टिंग, कि अपने क्लासरूम में जनरली कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं, कौन कौन सी वस्तुएं पाई जाती हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स इन योर क्लासरूम, a board, a table, a chair, cupboards, desks, benches, charts, posters, fan, tube lights. So many things are there. ठीक है, अपने क्लासरूम में आप अगर देखोगे तो वहाँ बहुत सारी वस्तुएं मिलती हैं। अगर चॉक, डस्टर सब मिलते हैं, तो वो सबको आपको क्या करना है, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स इन योर क्लासरूम। ये तो हमारे जो लेसन में था वही बताया है। इसके अलावा भी आप अपने क्लासरूम से भी जितने भी वस्तुएं होती है, सबको आपको क्या करना है, यहाँ लिस्ट में ऐड करते जाना है। ओके, नाउ द सेकंड, लिस्ट 10 थिंग्स यू सी एट होम। आप अपने घर में, ठीक है, आप अपने घर में
ऐसी वस्तुओं के नाम लिखो जो रोज देखते हो, डेली यूज, एटलीस्ट 10 थी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फैन, चेयर, टेबल, सोफा सेट, डोर, नाइफ, जो जो आप देखते हो घर में उसको क्या करना है, उन थिंग्स के नाम लिखना है बच्चों। तो ईद मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशन, हैप्पी दिवाली, कांग्रेट्स, मेरी क्रिसमस, हैप्पी होली, देज आर वेरी स्पेशल, समथिंग स्पेशल वाज देयर। उस समय वहां जो रहता है वो कुछ तो अलग होता है, समथिंग स्पेशल वाज देयर। सो हम उसे क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, इंजॉय करते हैं, यही हमारे लिए स्पेशल होता है। हम कहते हैं एक दूसरे से गले मिलते हैं, सेलिब्रेट। और उस समय क्या करते हैं, हम सभी एकजुट होकर काम करते हैं, खुशी का मौका हो तब हम एक दूसरे, इससे क्या होता है, हमारा जो यूनिटी पावर है, हमारे यूनिटी, जो हमारी एकता है, उसका परिचय होता है इन आवर इंडिया। इट इज वेरी एसेंशियल फैक्टर इन योर कंट्री, यूनिटी। मतलब एकता से हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। ओके, सो बच्चों, हमको स्पेशल ओकेजन पर इन शब्दों का प्रयोग करना है। ठीक है, नाउ unmute your mic and now ready to answer। अभी आप अनम्यूट कर सकते हो, ज्यादा शोर नहीं मचाना है बच्चों। Now match the picture with correct sentences। Sentence, match the picture with correct sentences। हम कहा किस पिक्चर का यूज करना है वो आपको मैच करना है। Now first is, today is रमेश बर्थडे, आज रमेश का जन्मदिन है। हम किस पिक्चर का यूज करेंगे, हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे सर नहीं, हैप्पी बर्थडे रमेश। हैप्पी बर्थडे रमेश, वेरी गुड। हैप्पी बर्थडे रमेश। सर कुछ आवाज नहीं आ रही। तो आ रही बताओ, हेलो, यस सर, आ रही ना आवाज? यस सर। हाँ, हाँ बच्चों, अभी थोड़ा थिंक करो, आप सोचो। नाउ अब सुरेश ने क्रिकेट मैच जीता है, हम क्या यूज कर सकते हैं उसके लिए? हेलो, हाँ, सुरेश वन द क्रिकेट मैच, सुरेश ने क्रिकेट मैच जीता हुआ है, तो हम क्या यूज करेंगे बच्चों? यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या यूज करेंगे? कॉन्ग्रेचुलेशन। नेक्स्ट, राधा एग्जाम इज स्टार्टिंग, राधा की एग्जाम शुरू हो गई है। एट दैट टाइम
राधा की एग्जाम शुरू हो गई है, अब हम क्या बोलेंगे उसे हम? गुड लक। वेरी गुड। क्या बोलेंगे हम? गुड लक। गुड लक। या गुड लक राधा। हाँ, नाउ ईद इज कमिंग। अब ईद आ गई है। ईद मुबारक। मुबारक। ईद मुबारक सर, ईद मुबारक। यस, ईद मुबारक। क्या बोलेंगे हम? ईद मुबारक। वेरी गुड, मुबारक। वेरी गुड स्टूडेंट्स। नाउ some dictation words are there. Yes. BOARD, board. BOARD, board. In our classroom, generally, it is very essential factor in our classroom. Board. Board मतलब होता है फलक, फलक। इसमें हमारे पास ग्रीन बोर्ड होता है और एक ब्लैक बोर्ड होता है, ठीक है, उसे हम फलक कहते हैं। CHAIR, चेयर, कुर्सी। CUPBOARD, कबर्ड, कपाट या अलमारी बोलते हैं हम, ठीक है। मैट, चटाई। मैट मीन्स चटाई। मैट मीन्स चटाई। CONGRATULATION, congratulation means अभिनंदन। यस, congratulations, it means अभिनंदन। वेरी गुड। नाउ सरप्राइज। सरप्राइज, अचानक। स्पेलिंग, read loudly. SURP। हाँ, RISE, surprise। सरप्राइज। What is the meaning of surprise? अचानक, आश्चर्यजनक। यस, आश्चर्यजनक। आश्चर्यजनक। हाँ, अचानक सस्पेंस में रखते हैं हम, अचानक हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है, सस्पेंस हो जाता है, उस समय हम सरप्राइज बोलते हैं उसे। नेक्स्ट वर्ड इज PLANNING, योजना। प्लानिंग। प्लान, प्लान करते हैं। प्लान मतलब योजना। प्लानिंग मतलब जब योजना कर रहे होते हैं उसको हम प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। प्लानिंग मतलब योजना। प्लान, प्लान का ING फॉर्म है, तो इसको एक बार आपको रीड करना है बच्चों। बोर्ड, फलक, चेयर, कुर्सी। यस, बोलो। कबर्ड, कपाट, कपाट, अलमारी, मेज, चटाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, जनक, प्लानिंग, योजना। वेरी गुड। सरप्राइज, अचानक या आश्चर्यजनक कोई बात हो उसे हम सरप्राइज कहते हैं। सरप्राइज गिफ्ट देते हैं आपके बर्थडे पर मम्मी पापा, ठीक है। यस सर। यस, अचानक में ही होता है ना सब कुछ। नो सर। इन प्लानिंग, प्लानिंग यानी योजना। इन अ बर्थडे, एट व्हेन वी सेलिब्रेट आवर बर्थडे, प्लानिंग, प्लानिंग्स आर देयर। मतलब हमको प्लानिंग करना होता है कि कितने लोगों को बुलाएंगे, कितने लोग आएंगे, फिर हम उनके साथ मतलब उनको क्या क्या देने वाले, इस प्रकार की प्लानिंग होती है, ठीक है। अभी देखिए जरा, तो इस प्रकार इन योर क्लासरूम
वी अरेंज समथिंग स्पेशल ओकेजन, जैसे हमारे टीचर्स के लिए ऑन 5 सितंबर को हम क्या करने वाले थे, ग्रीटिंग्स और कार्ड्स का यूज करने वाले थे बच्चों। तो उस प्रकार से ही हमको अपने क्लासरूम में क्या करना है, समथिंग स्पेशल का यूज करना है, ठीक है। तो मुझे बताइए, अब इन योर क्लासरूम फ्रॉम द in your classroom, when you open the post box, something special there are there. Thank you dear teacher, thank you so much, congratulations, happy birthday, Eid Mubarak, happy friendship day friends. There are so many cards are there in our classroom in the post box. So now from the post box, read the following. From the post box, read the following and write your own messages. अभी क्या करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल्स के लिए यहाँ पोस्ट बॉक्स में कुछ लेटर्स दिए गए हैं, कुछ कार्ड्स दिए गए हैं, इनको तो पढ़ना ही है बच्चों। रीड द फॉलोइंग एंड राइट योर ओन मैसेजेस। इस प्रकार से ही आपको क्या करना है, खुद के भी मैसेजेस तैयार करना है। ओके। द सरप्राइज, देखो आश्चर्यजनक, स्पेशल, अचानक में आपको क्या करना है, अचानक में क्या करना है, आपको कुछ सरप्राइज देना है अपने फ्रेंड्स को, अपने टीचर्स को। तब आप क्या करोगे, इट वाज द सरप्राइज, इट वाज 5 सितंबर टीचर्स डे। यहाँ जो लेटर्स कार्ड्स दिए हैं, जब टीचर ने ओपन किया पोस्ट बॉक्स क्लास में जाकर, when she opened the post box, she find there are so many cards, letters are there. उन्होंने बहुत सारा, जब पोस्ट बॉक्स ओपन किया तो उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ कार्ड्स पड़े हैं पोस्ट बॉक्स में। वो क्या है, इट वाज 5 सितंबर टीचर्स डे व्हेन द टीचर ओपन द पोस्ट बॉक्स। जब टीचर ने पोस्ट बॉक्स खोला, देयर वाज अ सरप्राइज फॉर हर, उनके लिए वहां एक सरप्राइज था, एक्साइटमेंट था कि बच्चों ने क्या रखा होगा पोस्ट बॉक्स में। तो उस समय टीचर ने जैसे पोस्ट बॉक्स ओपन किया, ऑल द लेटर्स वेयर फॉर द टीचर। टीचर को लगा था कि वो जो लेटर्स है, पत्र है, कार्ड्स है, वो बच्चों ने अपने दोस्तों के लिए बनाए होंगे, लेकिन शी सॉ, टीचर ने जैसे ओपन किया, देखा कि वो सब जो थे लेटर्स और कार्ड्स, ऑल द लेटर्स वेयर फॉर द टीचर, टीचर के लिए थे सभी कार्ड्स और लेटर्स। अब टीचर सो सरप्राइज, टीचर बहुत सरप्राइज हुए, आनंदित हुए, शी वाज वेरी हैप्पी, उस समय बहुत खुशी हुई थी कि बच्चों ने कुछ तो लिखा है लेटर्स, लेकिन क्या था वो, ऑल द लेटर्स वेयर फॉर द टीचर, और सभी लेटर्स जो थे वो केवल टीचर के लिए थे। अब उसमें क्या था, तो थैंक यू डियर टीचर, थैंक यू सो मच, इस प्रकार के लेटर पर लिखा हुआ था कि थैंक यू डियर टीचर, थैंक यू सो मच, इस प्रकार से लिखा हुआ था कि धन्यवाद टीचर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल योर स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 4 डिवीजन बी, मतलब चौथी कक्षा के सभी विद्यार्थियों ने क्या किए थे, थैंक यू टीचर ऑन द ओकेजन ऑफ 5 सितंबर, शिक्षक दिवस, टीचर्स डे, शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में एक ग्रीटिंग तैयार किया था, एक लेटर्स तैयार किया था, उसमें लिखा था थैंक यू डियर टीचर, थैंक यू सो मच। सभी बच्चों ने, ऑल योर स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 4 डिवीजन बी, कक्षा चौथी के सभी बच्चों
ग्रीटिंग्स तैयार किया था। वो ग्रीटिंग्स इस प्रकार थे। थैंक यू डियर टीचर्स, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कक्षा चौथी के सभी विद्यार्थी। उसके बाद में ये लिखा था, थैंक यू टीचर, वी ऑल लव यू वेरी मच। ठीक है, क्या बोलते हैं? थैंक यू टीचर, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, हम सभी आपको बहुत प्यार करते हैं क्योंकि आप इतने अच्छे हो। यू आर सो वेरी नाइस टीचर, हमारे सभी टीचर्स सभी अच्छे होते हैं, सभी स्टूडेंट्स अच्छे होते हैं। एज लाइक दैट, बच्चों ने लेटर्स जो ग्रीटिंग्स तैयार किया था उसमें क्या लिखा हुआ था कि थैंक यू टीचर, वी आर लव यू वेरी मच, हम सभी आपको बहुत बहुत मिस करते हैं, प्यार करते हैं। इस प्रकार से ग्रीटिंग्स था। नेक्स्ट लेटर, टीचर यू आर वेरी स्पेशल, समथिंग स्पेशल, but who is special in our classroom? Teacher you are very special, दीपक ने अपना नाम लिखा है। देखो बच्चों, इस प्रकार से आपको भी ग्रीटिंग्स तैयार करना है और उसमें अपने नाम लिखना है। अपने दोस्तों के लिए यूज कर सकते हो, फॉर योर टीचर्स, फॉर योर फ्रेंड्स, यू कैन यूज इट, यू कैन राइट इन योर ओन आइडियाज, ओन ग्रीटिंग्स for the occasion of birthday, on a teacher's day, so many occasions are there। बहुत सारे ओकेजन होते हैं खुशी अपने सेलिब्रेट करने के, उस समय आपको इस प्रकार के लेटर्स तैयार करना है और पोस्ट बॉक्स में डालना है। तो जैसे दीपक ने लिखा है, क्या लिखा है? टीचर्स यू आर वेरी स्पेशल, आप सबसे अलग हो, आप स्पेशल हो, हमारे लिए विशेष हो। देन मनीष क्या लिखते हैं? यू आर माई बेस्ट टीचर, यू आर माई बेस्ट टीचर। लाइक हर, वो टीचर के क्या करते हैं, मतलब पढ़ाने के तरीके, जो आइडियाज होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, टीचर्स टेक्निक्स, ही लाइक टीचर्स टेक्निक, ही लाइक द टेक्निक ऑफ रीडिंग, मतलब पढ़ाने का जो तरीका होता है या फिर बात करने का तरीका होता है, टॉकिंग स्टाइल होती है किसी की अलग से, मतलब एकदम सॉफ्टली बात करते हैं, इस कारण वो किसी को अच्छे लगते हैं। तो वैसे ही मनीष ने लिखा है, यू आर माय बेस्ट टीचर, यू आर माय बेस्ट, सबसे अच्छे टीचर हो आप मेरे। ठीक है, यू आर माय बेस्ट देख रही है। नाउ हियर, थैंक यू टीचर, यू आर माय आई इन स्कूल। देखो, मतलब ही कंपेयर एज लाइक मदर, टीचर को उन्होंने अपनी माँ से कंपेयर किया है और लिखा है, थैंक यू टीचर, यू आर माय आई इन स्कूल। ठीक है, आप मेरे लिए क्या हो? मेरी माँ के समान हो। इस प्रकार अमित लिखते हैं टीचर को ऑन टीचर्स डे 5 सितंबर, ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे। उस दिन अमित ने क्या लिखा? थैंक यू टीचर, यू आर माय आई इन स्कूल, इन स्कूल, स्कूल में मेरी माँ की जैसे लगते हो। अमित अपना नाम लिखे हैं। देन नेक्स्ट इज, टीचर यू आर माय बेस्ट फ्रेंड रायसा, टीचर यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, टीचर आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। इस प्रकार से किसने लिखा है? रायसा ने लिखा है, रायजा। आपको भी अगर फ्रेंड की तरह टीचर्स लगते हैं, यू कैन राइट आल्सो एज लाइक रायसा।
जैसे रायसा ने लिखा है टीचर यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, आप भी उस प्रकार से लिख सकते हो। नाउ बच्चों एक बार आपको रीड करना है। स्टार अनम्यूट योरसेल्फ और रीड करो। चलो पहला वाला, लुक एट द ग्रीटिंग कार्ड्स। आप समझो आप टीचर हो, आपको वो पढ़ना है। चलो पहला पढ़ो ग्रीटिंग कार्ड्स। Thank you, teacher. We are love your lovely, वेरी मच। very much. हाँ, थैंक यू टीचर, वी आर लव यू वेरी मच। जैसे ऐसे बोलते हैं टीचर फील वेरी हैप्पी, फुल ऑफ इमोशन, फुल ऑफ इमोशन, वो एकदम भावनाओं से भर जाते हैं टीचर, क्योंकि हमारे बच्चे हमसे कितना प्यार करते हैं। वो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने शब्दों से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बट दे कैन यूज देयर वर्ड्स एंड एक्सप्रेस देयर ओन आइडियाज अबाउट हर और टीचर। अपने टीचर के बारे में वो क्या करते हैं, अपने ओन आइडिया जो होते हैं वो लिख के व्यक्त करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है। सेकंड, पिंक, रीड इट। Thank you, dear teacher. Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू डियर टीचर, थैंक यू सो मच। इस प्रकार से हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद टीचर। वो सभी बच्चे चौथी क्लास के जो है सभी बच्चे करते हैं, ठीक है। चलो तीसरी मीटिंग पढ़ो। Teacher, you थर्ड, are very surprised. Thank you, teacher. Thank you, teacher. You are my eye in school. यस Amit. यस अमित, राइट अमित, Yes. अमित लेटर, दिस इज अमित लेटर। अमित ने लिखा है थैंक रीड इट। Teacher, you are very special. Deepak. दीपक, दीपक से वाटी से टीचर यू आर वेरी स्पेशल। ओके, यू आर वेरी स्पेशल। यू आर फॉर, यू आर वेरी स्पेशल फॉर मी, ऐसे मतलब दीपक ने लिखा है आप मेरे लिए सबसे अलग हो, सबसे विशेष हो। नेक्स्ट, इन येलो बॉक्स, You are best teacher. दीदी पढ़ो बच्चों इसको। You are my best teacher. यू आर माय बेस्ट टीचर। You are my best teacher. मनीष, Manish. हाँ मनीष ने लिखा है, क्या लिखा है, राइट, You are our best teacher. my best teacher. And now next card is Raisa. What she say? क्या कहती हो? Teacher, you are my best friend, Raisa. टीचर यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। तो बच्चों इस प्रकार से देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर। तो इस प्रकार से आपको अपने ओन आइडियाज तैयार करना है और अपने दोस्तों को लिखना है। इन फादर्स डे अपने पिताजी को, इन मदर्स डे आप घर में भी इस पोस्ट बॉक्स का यूज कर सकते हो। यू कैन यूज इन योर होम आल्सो। अपने मम्मी के बर्थडे पर, पापा के बर्थडे पर, बड़े भैया, छोटा भाई,
सभी के बर्थडे पर आप पोस्ट बॉक्स का यूज कर सकते हो और आप उसमें इस प्रकार से अनेक लेटर्स या ग्रीटिंग्स कार्ड का यूज करके उन्हें आप सेलिब्रेट कर सकते हो। सरप्राइज, उनके लिए वो सरप्राइज होगा। तो आप मुझे एग्जांपल बता सकते हो, अगर मैं भैया को उनके रक्षाबंधन के दिन, इन ओकेजन ऑफ रक्षाबंधन, हम क्या कहेंगे उन्हें? विच ग्रीटिंग्स आर यूज देयर? रक्षाबंधन के दिन हम क्या बोलेंगे बच्चे? बोलो स्टूडेंट्स। Yes. हैप्पी रक्षाबंधन। वेरी गुड, हैप्पी। Happy Rakshabandhan. Happy Rakshabandhan. तो बच्चों इस प्रकार से आपको क्या करना है, क्लास में Okay. का यूज करो, पोस्ट बॉक्स का यूज करो। नाउ तो समझ में आया बच्चों आपको? आई Yes. थिंक यस सर। ओके, वेरी गुड। नाउ इट इज योर होमवर्क टाइम। अगर आपको नहीं समझा होगा तो एक बार पूछो। नाउ इट इज योर होमवर्क टाइम। अब बच्चों आपको क्या Okay. करना है होमवर्क में? सबसे पहले मेक 2 greeting कार्ड ऑन एनी स्पेशल डे एंड शेयर इन ग्रुप। आपको ग्रुप पर शेयर करना है, ग्रीटिंग कार्ड्स तैयार करना है आपको इस प्रकार से, हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली। इस प्रकार से आपको कितने कार्ड्स तैयार करना है बच्चों? मैक 2, ओनली 2। हाउ 2. मेनी? ओनली 2 greeting cards and share in our group. Second, list the special days in your notebook. जितने भी आपके लाइफ में स्पेशल डेज होते हैं, इन योर क्लासरूम, इन योर जनरल लाइफ, तो उन स्पेशल डेज को आप अपने नोटबुक में एक लिस्ट तैयार करो और यू कैन शेयर इन आवर ग्रुप। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करेंगे। यू कैन write also, make at least 2 greetings on Diwali. Next occasion is coming soon. What is the occasion name? Diwali. Happy Diwali. तो बच्चों उस समय आपको क्या करना है, दिवाली पर आपको ग्रीटिंग्स तैयार करना है। एटलीस्ट 2, कम से कम 2 होना चाहिए। यू कैन राइट मोर देन, आप 2 से भी ज्यादा लिख सकते हो, ग्रीटिंग्स यूज कर सकते हो और उसको भी आप क्या करना है, ग्रुप पर सेंड कर सकते हो। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। प्लीज नोट डाउन द होमवर्क इन योर नोटबुक। ओके। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछिए, क्योंकि आप नोट ले लिया। वेरी गुड, थैंक यू। Okay. Bye, sir. बाय सर। MC Bye, sir. 4. Thank you very much students. Bye bye, take care and happy Diwali. हैप्पी दिवाली सर।